So today we are starting some identities. Some identities will be tried here for the trigonometric identities. Here are given that prove that the following identities. There are 4 identities are given, so we have to prove these identities. First one is given sin to the power 8 theta minus cos to the power 8 theta is equal to sin square theta minus cos square theta into 1 minus 2 sin square theta cos square theta. So identity means you can start from left hand side or you can start from right hand side. If you start from left hand side, then you have to, after calculation, you have to show that it is coming into the right hand side. If we start from the right hand side, then we have to start from right hand side and establish the property of left hand side. This is the way to prove this identity. As it is the identity, so it is free to choose from where you are starting. So here sin to the power 8 theta minus cos to the power 8 theta, this can be write as sin to the power 4 theta whole square minus cos to the power 4 theta whole square, that whole square. So it is a square minus b square, so a minus b into a plus b, you can write it. Again the sin to the power 4 theta minus cos to the power 4 theta can be written as sin square theta whole square minus cos square theta whole square. Then it is again a plus b into a minus b, then it is coming a minus b into a plus b, and this sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta, it is given constant. So here this sin square theta plus cos square theta means we know that 1. So we are putting here 1. So only remaining part is sin square theta minus cos square theta into sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta. Now this sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta, this part is remain unchanged. We are, because of that, look at here in the right hand side this sin square theta minus cos square theta is occurred, so we are taking this unaltered. Then we have to make this sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta. So it can be written as sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta. We added 2 sin square theta cos square theta, and we subtract 2 sin square theta cos square theta. So we can write this plus this minus this. Then this sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta plus 2 sin square theta cos square theta. This total part can be written as sin square theta plus cos square theta whole square minus 2 sin square theta cos square theta. Again this sin square theta plus cos square theta means 1. So 1 whole square equal to 1 minus 2 sin square theta cos square theta, which is the right hand side. Give some message to this Anjali Mohanto, Sri Nidhi Kumar, Pranab Sinha. They do not have the identity, so they have to join with their student ID, right? Now here for the second part, it is given that cot to the power 4 theta plus cot square theta is equal to, we can write that cot to the power 4 theta as cot square theta whole square plus cot square theta. Now again we know that from the formula 1 plus cot square theta means cosec square theta, so we are putting instead, so from here cot square theta means cosec square theta minus 1. So instead of cot square theta, we can write down that cosec square theta minus 1, that is whole square, plus cosec square theta minus 1. Now it is a minus b whole square. We are putting the formula a square minus 2ab plus b square, and remaining part is same. Now it is cos to the power 4 theta. Here it is minus 2 cosec square theta plus cosec square theta, that is minus cosec square theta. This plus 1 and minus 1 cut, that is the right hand side. So these are the identities. From these identities we can find out all those things. Now we are going for the some example. Here prove that the following identities. These are called the trigonometrical identities. To solve this, that is, first one is given that 1 plus cot theta minus cosec theta into 1 plus tan theta plus cosec theta is equal to 2. So we are starting from the left hand side.
1 plus cot theta minus cosec theta into 1 plus tan theta plus sec theta. So from here, if we maintain that cot theta means cos theta by sin theta and cosec theta means 1 by sin theta, and here tan theta means sin theta by cos theta and sec theta means 1 by cos theta. Now we are taking the LCM of this, then sin theta will be LCM of first bracket, so it will be coming sin theta plus cos theta minus 1, and here cos theta will be the LCM, then again it will be sin theta plus cos theta plus 1. So now if we take that sin theta plus cos theta as A and 1 as B, then the numerator is A minus B into A plus B, so that can be written A square minus B square form. Sin theta plus cos theta, let us consider sin theta plus cos theta A and 1 equal to B, then it is A minus B into A plus B, that means A minus B square. So A square means sin theta plus cos theta, that whole square, and B square means 1 square. So it is written here sin theta plus cos theta whole square minus 1 by sin theta cos theta. हेलो सर। हाँ बोलो। सर बोले चौथा लाइन में समझ में नहीं आया क्या बोले। यहाँ पे हाँ सर, उसके बाद जो हाँ वहीं पे सर। हाँ, लुक एट हियर, इफ वी आर गेटिंग दैट, यहाँ पे देखो ऊपर में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 एंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। अगर हम लोग मान लेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू ए एंड 1 इक्वल टू बी, तब ऊपर में क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ना। If we Yes, sir. sin theta plus cos theta as Yes, a sir, and yes, 1 as b, then a minus b into a plus b. That means we can write down that a square minus b square. A square means sin theta plus cos theta whole square minus b square means 1 square, that is 1, and the LCM is sin theta into cos theta. Now this sin theta plus cos theta whole square can be written that sin theta plus cos theta whole square can be written as sin square theta plus cos square theta plus 2 sin theta cos theta, and this minus 1 is remaining unchanged. Now again this sin square theta plus cos square theta means 1, we know that. So Yes, sir. instead of this sin square theta cos square theta 1, then this 1 and this minus 1 will be cut. So numerator only will be given that 2 sin theta cos theta and denominator is sin theta cos theta. So this sin theta cos theta will be cut, only 2 will be the result, which is our required result in the right hand side. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. It is clear. Now again it is given that left hand side sin theta plus sec theta minus 1, tan theta plus sec theta minus 1. Oh, someone is joining with Redmi, it is not deserved, they have to come with proper student ID. Tan theta plus sec theta minus 1 by tan theta minus sec theta plus 1, right? That is given here. So tan theta plus sec theta remain unchanged. Again we know that 1 means sec square theta minus tan square theta from the sec tan formula. 1 can be written as sec square theta minus tan square theta, so we are writing that here, and in the denominator it is 1. This 1 can be written as sec square theta minus tan square theta from the sec tan formula. Yes, sir. We are writing that. Now it is a plus b into a square minus b square, that can be written as a plus b into a minus b, that is instead of this sec square theta minus tan square theta, we can write that sec theta plus tan theta into sec theta minus tan theta, na? So here it is sec theta plus tan theta, and here also minus of sec theta plus tan theta. So from these two parts we can take common sec theta plus tan theta. So if we take common sec theta plus tan theta, then here it will be 1 minus of sec theta minus tan theta, and denominator is remain unchanged. So this sec theta plus tan theta into 1 minus sec theta plus tan theta. So we can write down that tan theta minus sec theta plus 1 instead of this. Instead of this we can write down that tan theta minus sec theta plus 1, that is written here. In the denominator also tan theta minus sec theta plus 1. So this part. हेलो सर। हाँ बोलो। सर बोले तीसरा लाइन में क्या हुआ? यहाँ पे इसको
sec square theta minus tan square theta है ना? Yes, sir. Theta plus tan theta into sec theta minus tan theta. Yes, sir. Then from this part and this part we can take common tan theta plus sec theta. अगर tan Yes, theta sir. plus sec theta ये दोनों से कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या आएगा? tan theta plus sec theta into from this part it will be coming 1 and for this part it will be coming minus of sec theta minus tan theta. So this can be written as tan theta minus sec theta plus 1, that is written here. Now look at the denominator, that is also tan theta minus sec theta plus 1. So this two part will be cut it down, so it will be only coming that sec theta plus tan theta. That is coming here, sec theta plus tan theta. Now sec theta can be written as 1 by cos theta and tan theta can be written as sin theta by cos theta. Now LCM is cos theta, so numerator is 1 plus sin theta. सर क्वेश्चन नंबर 1 का 1 थोड़ा सा फिर से समझाइएगा, थोड़ा स्टेप में एक दिक्कत है। नंबर 1 1 का 1, यस। हाँ, कौन सा लाइन शुरू से? 1 का 1 सर, ये सर 2 का 1 है, 1 का 1, ये वाला। यस सर। आप जो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किए हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस स्टेप में प्लस और माइनस करना है? यहाँ पे तुम लोग को ऐसे पता चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे देखो जो साइंस का थीटा प्लस कॉस सर फिफ्थ लाइन में प्रॉब्लम है सर। हाँ, फिफ्थ लाइन में प्रॉब्लम है, जो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हाँ, साइन स्क्वायर 4 थीटा, हाँ, यहाँ ये पे लाइन में प्रॉब्लम है सर। और सब्ट्रैक्ट किए है ना। तो सर कैसे पता चलेगा कि यहीं पे इसी स्टेप में माइनस करना है? गुड क्वेश्चन। देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है राइट हैंड साइड को फॉलो करो। राइट हैंड साइड में क्लियर कट दिया हुआ है एक साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और एक पार्ट है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ साइन कॉस इज स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पार्ट आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 पुट कर दिया। अभी इसमें है साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा। अगर इसका जो पावर है इसको घटाना है तो उसको सम होल स्क्वायर समथिंग का होल स्क्वायर फॉर्म में लाना है। पैसा डालो घुमाए, ठीक है, इसको घटाना पड़ेगा इसका पावर को। बिकॉज ऑफ दैट इन द राइट हैंड साइड हाईएस्ट पावर ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा इज गिवन स्क्वायर। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करके तुम ये भी कर सकते थे जो साइन थीटा होल साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल। सर एक बार लिख के बताइए ना सर। हेलो सर, सर ये फिफ्थ लाइन के साइड में लिख के दिखाइए ना सर। हाँ सर, ऐसे में समझ में नहीं आता, अच्छा थोड़ा ऐसे लिख समझ के में नहीं आ रहा बताइए। है सर। आई वो डोंट बात हम भी सर को बोले थे सर। पहले, पर सर बोले दूसरा प्रॉब्लम है। अभी डॉक्यूमेंट कैमरा मेरे पास में है। ऐसे समझ नहीं आएगा सर, हाँ, लिख I के cannot बताइए तब समझ understand, में आएगा sir. सर, ऐसे समझ में नहीं आएगा। सर फिफ्थ लाइन क्लियर नहीं हो रहा है सर, प्लीज राइट। यस सर, यस सर। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, अभी जो है इसके बाद हम इसको हाथ में करके एवरी लाइन करके उसका जो ये पीडीएफ है तुम लोग को भेज देंगे, ठीक है। ओके सर। क्योंकि ओके सर। डॉक्यूमेंट कैमरा नहीं है, नहीं तो हम इधर में बोर्ड में ही पढ़ाते थे तुम लोग को। डॉक्यूमेंट कैमरा मेरे पास है नहीं अभी, ठीक है। सर मोबाइल नहीं है सर। हाँ, मोबाइल में कैसे लिखेंगे? सर ब्लैक बोर्ड में करवाइए सर, चेयर में रख के। ओके, आई विल टेक द या सर नोटबुक में सर। ठीक है, इसमें जो दिक्कत है हम देखते हैं और तुम लोग जो सजेशन दिया है वो भी हम करेंगे, ठीक है। मोबाइल से कैसे करेंगे बाबू, थोड़ा बताओ तो। हेलो सर जूम सही होगा सर। हाँ सर। मोबाइल में भी जूम होना चाहिए सर सर मोबाइल स्क्रीन लगा के कीजिए सर। ना सर। हाँ, हाँ। शेयर फोन स्टैंड मिलता है सर। नोट्स में जाके लिख लिख के मोबाइल पढ़ाइए। स्क्रीन लगा के दीजिए ना। अच्छा, ठीक है। फिजिक्स वाले सर लोग पढ़ाते हैं सर, वैसे पढ़ाइए ना। सर वो भी फिजिक्स सर, नहीं तो केमिस्ट्री एक बार सर। अनाबी कॉलेज से पूछ लीजिए कैसे पढ़ाते हैं वो। उन लोग सर पेन पेपर में लिख के पढ़ाते हैं। सर वीडियो कॉल ऑन कौन करके से? आप बोर्ड में पढ़ा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। सर आज ऐसे पढ़ाइए, कंटिन्यू कीजिए।
हाँ ठीक है, आज छोड़ दो, कल से हम देखते हैं। मुझे सही सर लगता कभी है। कभी ऑप्शन रहता है कि इसी पीडीएफ का साइड में लिखने का जगह रहता है सर, उसमें भी आप लिख के बता सकते हैं। हाँ हाँ, that will be better ना। अरे यस यार ये सर। मैथ है, इसमें छोटा छोटा चीज नहीं ना है, इसमें बड़ा लैंग्वेज दिखाया जाता है। हाँ तो जो सर बड़ा एकदम लिखना सही रहेगा बोला। उसके इसलिए सर को बोलो वीडियो कॉलिंग ऑन करके बोर्ड में ही पढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ सर। यस सर। Sir, it is good option. Arts Kesari. ठीक है, अगला क्लास से हम ये ऑप्शन चूज करेंगे। अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग क्या बोल रहे हो। सर नेक्स्ट क्लास में आप वीडियो कॉल ऑन करके हाँ सर बोर्ड में ही देखिए, आप पढ़ाइए। जहाँ पढ़ा रहे हैं ऊपर में है ना लीव का ऑप्शन और नीचे में है म्यूट हाँ स्टार्ट वीडियो। हाँ। तो स्टार्ट वीडियो ऑन करके अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा, अच्छा और जहाँ पर ब्लैक बोर्ड है उसके सामने फोन को रख के आप ब्लैक बोर्ड में पढ़ाइएगा, समझे? अच्छा। यस सर, ऐसे ही सर। यस सर, ऐसे ही पढ़ेगा। ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, दूसरा क्लास तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास। ठीक है सर। आज भर कंटिन्यू कर लीजिए, फिर अगला दिन से पढ़ाइएगा वैसे वैसे सर। ओके। Now look at here, example number 3. Here it is given that if tan theta plus sin theta equal to m and tan theta minus sin theta equal to n, then we have to show that m square minus n square equal to 4 root over mn. So we shall start from left hand side, that is m square minus n square. At first we are find out the value of m square minus n square. Value of m square minus n square equal to m means tan theta plus sin theta and n means tan theta minus sin theta. We are putting the value of m and n here. So it will be given a plus b whole square minus a tan theta plus sin theta whole square minus tan theta minus sin theta whole square. So if we say that tan theta equal to a and sin theta equal to b, then it is a plus b whole square minus a minus b whole square. So from the arithmetic algebra we know that a plus b whole square minus a minus b whole square means 4ab, isn't it? Yes, Formula sir. of a plus b whole square minus a minus b whole square means 4ab. So it is written here 4 into tan theta sin theta. That is equation number 1. Now we are going for 4 root mn. So that is 4 root mn is equal to 4 root over m means tan theta plus sin theta, n means tan theta minus sin theta. So from here we can write down that a, if we consider that tan theta equal to a and sin theta equal to b, then it is a plus b into a minus b, so it can be written a square minus b square, that is 4 into root over tan square theta minus sin square theta. Now 4 into root over tan square theta can be written that sin square theta by cos square theta minus sin square theta. So tan square theta written here sin square theta by cos square theta minus sin square theta is equal to 4 into root over, if we take the LCM is cos square theta, then it is sin square theta minus sin square theta into cos square theta. Then it is 4 into root over, if we take common sin square theta from here, then it is 1 minus cos square theta by cos square theta. 1 minus cos square theta means sin square theta, so it will be coming sin to the power 4 theta by cos square theta. So it is coming that sin to the power 4 theta by cos square theta under root. When we take this square root, then it will be coming sin square theta by cos theta, sin square theta by cos theta. Now this sin square theta by cos theta can be written sin theta by cos theta into sin theta. There sin theta by cos theta means that tan theta and another sin theta is here. It is equation number 2. Now look at here, the value of m square minus n square was 4 tan theta sin theta. Again the value of 4 root mn, that is also 4 tan theta sin theta. So from 1 and 2 we can say that this is equal to m square minus n square equal to 4 root mn. ठीक है? Is it understood? We have find out the value of m square minus n square, then we are find out the value of 4 root over mn. Both of the value are equal, so we can say that m square minus n square equal to 4 into root mn.
Is it clear? यस सर। Now we are going for Yes, next example. If cos theta plus sin theta equal to root 2 cos theta, then prove that cos theta minus sin theta equal to root 2 sin theta. So here it is given that cos theta plus sin theta equal to root 2 cos theta. So we are taking the square of both sides. So it is coming that cos theta plus sin theta whole square into root 2 cos theta whole square. So it is a plus b whole square, that is cos square theta plus sin square theta plus 2 sin theta cos theta is equal to 2 cos square theta. Now if we take this sin square theta and cos square theta left hand side and multiplying by minus then we got that cos square theta minus sin square theta equal to 2 sin theta cos theta. Now this cos square theta minus sin square सर ये theta, स्टेप नहीं समझ में आया सर। हाँ ये स्टेप नहीं समझ में आया। ये यस सर। here a plus b whole square formula is given, that is a square plus b square plus 2ab, and here it is 2 cos square theta. ए Now, प्लस बी का होल स्क्वायर है ना सर? a plus b का whole square, that is a Yes, square sir. plus b square plus 2ab. ओके सर। And here it is 2 into cos square theta. Now taking all the sin square cos square part into the right hand side and it is remaining left hand side, then it is coming that cos square theta 2 cos square theta, if we take this one into the right hand side then it is minus cos square theta. So 2 cos square theta minus cos square theta means cos square theta, and this sin square theta is coming into the right hand side, then it will be minus sin square theta. That is written here, and this side it will be remaining 2 sin theta cos theta. Now this cos square theta minus sin square theta, if we say that cos theta equal to a and sin theta equal to b, then it is a square minus b square. This a square minus b square can be written that a plus b into a minus b. हेलो सर। Yes, हेलो सर, वो लाइन समझ में नहीं आया। सर आप फर्स्ट साइज में सर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड किए हैं क्या सर? हाँ both side. ओके सर, इट इज क्लियर। Equation है ना, एक साइड में नहीं कर पाएंगे. If we have to squaring, then we have to squaring both sides. यहाँ पे अगर हम लोग 2 cos स्क्वायर थीटा ये दोनों को राइट हैंड साइड में जितना साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है ना उसको सभी को राइट हैंड साइड में लेंगे तो उसका कैलकुलेशन करके ये आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पे रहेगा 2 sin थीटा cos थीटा. नाउ अगर हम लोग मान लेंगे ये cos थीटा इक्वल टू a एंड sin थीटा इक्वल टू b, देन इट विल बी गिवन दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देन इट विल बी cos a प्लस b इंटू a माइनस b, that is cos theta plus sin theta into cos theta minus sin theta equal to 2 sin theta. हेलो सर। हाँ बोलो सर बोलो. बोले सर, फोर्थ लाइन कैसे हुआ समझ में नहीं आया ये वाला उस। यस सर। ये देखो राइट हैंड साइड में क्या है 2 cos सर square. सेकेंड लाइन क्लियर कीजिए ना सर। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलो. सेकेंड सर लाइन एक बार स्टार्टिंग से ही एक बार बता दीजिए। सर स्टार्टिंग से बताइए सर। सर बिना फार्मूला दिए कोई लेकिन समझ नहीं पाएगा सर, पहले फार्मूला ठीक है देखते हैं. ये सर 2 cos स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट मतलब बता दिए 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, बहुत सारे लोग को पता नहीं है वो फार्मूला है। जस्ट ए मिनट. सर पहले फार्मूला बता दीजिए सारा ट्रिगोनोमेट्री का। अरे ये तो फॉर्मूला जो है ना ये तो इसका फॉर्मूला है, क्या बोलते हैं एलजेब्रा का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता नहीं है? वो नहीं Yes, सर, sir. 2 cos Sir, स्क्वायर थीटा सर, 2 cos स्क्वायर थीटा। यस सर, ये सब बहुत लुक एट हियर 2 cos स्क्वायर थीटा इधर में है ना, इधर में एक cos स्क्वायर थीटा है. अगर if we are taking cos square theta into the right hand side, then it will be minus, then 2 cos square theta minus cos square theta. Just a minute, I will try to. ये नोटेशन कहाँ गया, वो भी नहीं दिख रहा है.
एक मिनट रुको, हम देखते हैं। सर इसमें लिखने का ऑप्शन होगा तो साइड में हाँ, देखिए, वही हम देख रहा है। ये साइड में दिया हुआ, राइट साइड में। साइन का ऑप्शन दिखा रहा है। पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा ना। ठीक है, हम ये सभी को एक एक करके बना के तुम लोग को पीडीएफ सेंड कर देंगे। सर आपका आवाज धीरे धीरे आ रहा है सर। अभी धीरे धीरे ही हम बोल रहे हैं, इसलिए इसलिए हम ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। एक मिनट रुको। सर हाँ बोलो। मिनिमाइज कीजिए ना सर पूरा। आप पढ़ा रहे कंप्यूटर में ना सर? हम्म एनोटेशन वाला पार्ट हम ढूंढ रहे हैं। एक एनोटेशन होता है ना। सर जूम आउट कीजिए ना थोड़ा सा। You just wait for 1 minute. एक मिनट रुको है, हम इसको करके दिखा देते हैं। क्या बोले सर? एक मिनट रुको, हम इसको बना के तुम लोग को दिखाते हैं। ओके सर। सर क्लियर हो गया सर, ये जो आप एग्जांपल नंबर 4 बताए। आई अंडरस्टैंड। तो चुपचाप रहो ना। चुप रहो, चिल्ला। एक मिनट रुको, कर देते हैं। हेलो हाँ बोलो। सर, हम बताएं क्या? बताओ। रुकिए सर, वीडियो ऑन करते हैं, लिख के बताते हैं सर। कुणाल हम तुमको समझाए क्या? जो नहीं समझ में आ रहा तुमको समझाओ। देखो सर, स्क्रीन शेयरिंग बोल रहा है। हेलो सर,
परमिशन देना होगा। हेलो सर, हम समझा सर। हाँ देखो कुणाल, √2 cos थीटा है। यस सेकंड स्टेप में देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है इक्वल टू अरे √2 cos। सबको समझा दो भाई। हाँ सभी वो को समझ समझा में आ रहे गया। देखो। हाँ उसका वो नेक्स्ट समझ स्टेप, हाँ बता रहा नेक्स्ट स्टेप, रुको थोड़ा सा। तो फिर उसका होल स्क्वायर हो गया तो रूट हट गया, 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया। उसके हाँ बाद जो जो 2 cos स्क्वायर थीटा है ना, उसको वहीं पर रहने दो। हाँ ठीक, RHS को बोल रहा है। और LHS में जो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा है ना, उसको भी वहीं रहने दो। और 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा LHS में ही रहने दो। और जो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा है, उसको RHS में माइनस करके ले आओ। ठीक, उसको RHS में ले आओ, समझा। हाँ हाँ समझ गया। हाँ तो उसको माइनस करेगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, एक ही cos स्क्वायर थीटा बचेगा और माइनस sin स्क्वायर थीटा ही उधर बचेगा। फिर RHS और हाँ LHS मतलब को, टू टू इसको 2 cos स्क्वायर थीटा को इधर ले आएंगे, मतलब उधर ले चले जाएंगे, हाँ और हाँ साइन को भी ना साइन माइनस हो स्क्वायर जाएगा, थीटा। माइनस हो जाएगा। हाँ 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 समझ गया समझ तो गया। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो हाँ जाएगा। LHS और RHS को फिर अपने से ये कर लो तो सॉल्व कर लो, हो जाएगा। ठीक, यस ब्रो। हाँ कॉपी का हाँ यूज कर लो, समझ गए। हाँ सर समझ गया सर। हाँ कॉपी का यूज कर लो। समझ गए सर। आया समझ में। तो थैंक यू कुणाल। ठीक है, अभी जो देख रहा है ना, दिक्कत हो रहा है तुम लोगों को। एक काम करो, आज के लिए ऐसे ही पढ़ लो, हम नेक्स्ट डे से इसको कोशिश करते हैं। हेलो ओके सर। यस सर। यस सर। यस सर। now look at here, a cos theta plus b sin theta from the side, a cos theta plus b sin theta equal to x, and a sin theta minus b cos theta equal to y. Then we have to prove that a square plus b square equal to x square plus y square. So we are starting from this right hand side, x square plus y square is equal to a cos theta plus b sin theta, putting the value of x and putting the value of y. x का वैल्यू दिया हुआ है a cos theta plus b sin theta, that is put here, that is whole square, plus y means a sin theta minus b cos theta, that whole square. Now it is a plus b whole square, and here also a minus b whole square. We are putting the formula a square plus b square plus 2ab. Here it is a square plus b square minus 2ab. Now from these two, if we take common a square, then here it will be cos square theta, and from here it will be sin square theta. If we take common b square, then from here it will be coming sin square theta, and from here it will be coming cos square theta, and this plus 2ab sin theta cos theta minus 2ab sin theta cos theta, this part will be cut. So it will be coming a square, and we know that sin square theta plus cos square theta 1. Here also sin square theta cos square theta 1. So it will be coming 1 into a square, that is a square, 1 into b square equal to b square, which is our left hand side. ये आया समझ में? यस सर। सर लास्ट वाला लाइन में वो a स्क्वायर और b स्क्वायर वो कैसे निकल गया, वो समझ में नहीं यहाँ पे आया। देखो sin square theta plus cos square theta का वैल्यू 1 है ना? नहीं सर, उसके ऊपर वाला लाइन है ना, तो उसके ऊपर वाला से ये थर्ड लाइन कहाँ कैसे आ गया। अच्छा ये देखो, ये एक पार्ट है और यहाँ पे एक पार्ट है। अगर ये दोनों पार्ट से हम लोग ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रहेगा और प्लस यहाँ पे रहेगा यस सर। एंड ये पार्ट, ये दोनों से हम लोग ए स्क्वायर कॉमन लिया, यस सर। पार्ट से बी स्क्वायर कॉमन लिया, ठीक है। और यस सर। प्लस है, यहाँ पे माइनस है 2ab sin थीटा cos थीटा, ये दोनों पार्ट कट जाएगा। यस सर।
cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अगर समझ गया सर। हाँ हाँ तो समझ गया। नेक्स्ट पार्ट अगर इसमें हम लोग को पास कॉपी होता तो अच्छा होता। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा तरीके से क्लास लेंगे, ठीक है। तुम लोग जो सजेस्ट किए हैं वो अच्छा होगा। एक्चुअली हम ओके सर। बोर्ड में, तुम लोग व्हाइट बोर्ड में पढ़े हो क्या सर? व्हाइट बोर्ड में तुम लोग पढ़े हो कभी? यस सर, पढ़े हैं सर। यस सर, यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। नो सर। व्हाइट बोर्ड और डॉक्यूमेंट कैमरा दोनों ही अभी नहीं है, इसलिए दिक्कत है। ठीक है, इफ x by cos theta plus by by sin theta is equal to a square minus b square and ax sin theta by cos square theta minus by cos theta by sin square theta equal to 0, ये दोनों गिवन कंडीशन है। तब हम लोग को प्रूव करना है ax होल टू द पावर 2/3 प्लस by होल टू द पावर 2/3 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल टू द पावर 2/3। तुम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नो सर। नो सर, मैथ में सर कुछ कुछ नहीं नहीं हुआ। हुआ है सर। नो सर मैथ में कुछ नहीं हुआ है सर। मैथ हम ही शुरू किए हैं तुम लोग को। सर ये फर्स्ट यस सर। ये सर डायरेक्ट सर ये स्टार्ट किए तो बाइनोमियल, लेकिन वो एक दिन हुआ था। बाइनोमियल सर हुआ था थोड़ा सा, एक दिन सर बाइनोमियल। एक दिन केवल हुआ था सर। खाली इंट्रोडक्शन दिए सर बस। ठीक है, आई ट्राई माय बेस्ट। ठीक है। देखो अगर हो पाएगा तो हम भी कोशिश करते हैं, तुम लोग भी करो, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। एक सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा सर, किसी को अभी समझाइएगा। ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। ये क्वेश्चन यस सर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सर। कॉपी चाहिए सर। दोनों कंडीशन दिया हुआ है, x बाई कॉस थीटा प्लस by बाई साइन थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। और एक इक्वेशन दिया हुआ है x बाई साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस by कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा 0। ये दोनों इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें समझने का कोई बात नहीं है, ऑलरेडी गिवन कंडीशन। हम लोग को क्या दिखाना है, x होल टू द पावर 2/3 प्लस by होल टू द पावर 2/3 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल टू द पावर 2/3। ये हम लोग को दिखाना है, प्रूव करना है, ठीक है। ये दोनों गिवन कंडीशन है। सो फर्स्ट हम लोग यहाँ से आ रहा है, ये जो गिवन कंडीशन है इसको लिखा है इधर, ठीक है, इसको लिख दिया। देन यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना एलसीएम। यस सर। तो इसमें कॉस स्क्वायर थीटा नहीं रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा इनटू दिस होगा ना। इसके साथ साइन थीटा अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, a एक साइन क्यूब थीटा माइनस इसके साथ होगा कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज a एक साइन क्यूब थीटा माइनस by कॉस क्यूब थीटा, और ये 0 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0 हो जाएगा। तो इस लाइन के बाद क्या होगा, a एक साइन क्यूब थीटा माइनस by कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू 0। देखो वही लिखा हुआ है, a एक साइन क्यूब थीटा माइनस by कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू 0। आया समझ में ये पार्ट? यहाँ पे हम लोग एलसीएम किए हैं और डिनोमिनेटर है इसके साथ 0 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 0 हो गया। अगर एलसीएम करेंगे तो एलसीएम में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इस पार्ट के लिए कॉस स्क्वायर थीटा नहीं रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। तो a एक साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इट विल बी a एक साइन क्यूब थीटा, एंड इस न्यूमरेटर के साथ ये cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बी by cos क्यूब थीटा, एंड जो डिनोमिनेटर है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ होके 0 हो जाएगा। तो अपर हाफ में आएगा a एक साइन क्यूब थीटा माइनस by cos क्यूब थीटा इक्वल टू 0। वही लिखा हुआ है, देखो a एक साइन क्यूब थीटा माइनस by cos क्यूब थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये 0 है तो हम लोग लिख सकते हैं एक, हाँ बोलो बोलो, हेलो। So we can write down that a एक साइन क्यूब थीटा इक्वल टू by cos क्यूब थीटा। यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं, ये लाइन के बाद
यस सर। ax sin cube theta equal to b by cos cube theta. Now साइन क्यूब थीटा जो है उसके साथ ax है, ये ax ये cos क्यूब के नीचे लाएंगे और ये by साइन क्यूब के नीचे लाएंगे, तब ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा बाई by इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा बाई ax। आएगा ना यहाँ से देखो। यस सर। इधर में साइन क्यूब थीटा है ना, यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा है। हम लोग लाना चाहते हैं इस क्यूब को स्क्वायर में। अगर क्यूब को स्क्वायर में लाना है तो ये 3 को किससे मल्टीप्लाई करने से इसका वैल्यू 2 होगा? 2/3 से सर। 2/3 सर। इसीलिए होल टू दी पावर 2/3 दोनों में ले लिया हम लोग। देखो इक्वेशन है तो दोनों तरफ ही हम लोग को 2/3 लेना होगा, ले लिया। तो इसमें क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा बाई by होल टू दी पावर 2/3, साइन स्क्वायर थीटा by होल टू दी पावर 2/3, ये होगा cos स्क्वायर थीटा बाई ax होल टू दी पावर 2/3। ठीक। नाउ अच्छा, तुम लोग क्लास 9-10 में एक ये पढ़े थे रेशियो प्रोपोर्शन फॉर्मूला। अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी होगा तब उसको इक्वल टू हम a प्लस बी बाई सी प्लस डी ना। यस सर यस सर। हाँ, इसको कहता है रेशियो प्रोपोर्शन। a by b equal to c by d, then we can write down this equal to a plus b by c plus d. So अगर इसको हम लोग a मानेंगे, इसको b मानेंगे, a b, so a by b equal to c by d, that equal to a plus c by b plus d. So here sin square theta plus cos square theta by by whole to the power 2/3 plus ax whole to the power 2/3. ये समझ में आया? ये we are just using the ratio and proportion formula. अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी होगा, इसको इक्वल टू होगा a प्लस सी बाई बी प्लस डी। ये रेशियो सेम होगा यूजिंग द ये स्टेप नहीं समझे सर। हाँ, ये स्टेप नहीं समझ में आया सर। ये एक रेशियो प्रोपोर्शन जो तुम लोग क्लास 10 में किए थे उसमें एक फॉर्मूला था। अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी होगा, उसको इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, इसको मानो a, इसको मानो b, इसको मानो c, इसको मानो d। तो a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी अगर ये होगा तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन फॉर्मूला कहते हैं a प्लस सी बाई बी प्लस डी भी इसका साथ इक्वल होगा। तो इसीलिए इसको a b मानो और इसको c और इसको d मानो। तो a प्लस सी बाई बी प्लस डी दिस इक्वल टू a प्लस सी बाई बी प्लस डी। ये रेशियो प्रोपोर्शन फॉर्मूला क्लास 10 का फॉर्मूला है। क्लास 10 या 9 होगा, मुझे पता नहीं है। तो यहाँ से हम लोग ये पार्ट लिख सकते हैं। नाउ अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मींस 1 है ना। यस सर। वहाँ पे 1 बैठा लीजिए। तो देखो दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दिस इक्वल टू थर्ड वन एंड दिस इक्वल टू सेकेंड वन। ये लिख सकते हैं ना। ये तीनों अगर इक्वल है तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, तो a इक्वल टू सी एंड b इक्वल टू सी हम लोग लिख सकते हैं ना। यस तो सर। यहाँ से हम लोग लिखे यस सर। एंड दिस इक्वल टू दिस sin स्क्वायर थीटा बाय b y टू द पावर 2/3 दिस इक्वल टू दिस वन। उसके बाद दिस by होल टू द पावर 2/3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, देन वी गॉट द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा। Another part will be this equal to this, then multiply by this, then we got the value of cos square theta, that is ax whole to the power 2/3 by this. So we got the value of sin square theta and cos square theta. So if we take the square root, then we got the value of sin theta and value of cos theta. Sin square theta and cos square theta का वैल्यू निकल गया, so इसको स्क्वायर रूट कर दिया, तो sin theta इक्वल टू इधर में by बाई 2/3 था, ये स्क्वायर रूट करने के बाद ये by बाई 1/3 हो जाएगा और यहाँ पे एक रूट अंडर रूट ये होगा। और यहाँ पे भी ax होल टू दी पावर 2/3 था, कोई नहीं अंडर रूट ले लिया तो ax होल टू दी पावर 1/3 हो गया इनटू रूट ओवर दिस। तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग को पता चल गया। तो ये सब आया कहाँ से? साइन थीटा का वैल्यू ये, कॉस थीटा का वैल्यू ये आया था हम लोग को जो सेकेंड पार्ट दिया था ओ, और एक पार्ट बचा हुआ है दिस वन ना। अभी यहाँ से हम लोग आते हैं, यहाँ पे हम लोग साइन थीटा, यहाँ से हम लोग साइन थीटा एंड कॉस थीटा का वैल्यू निकल लिया तो यस सर।
तो अभी वो साइन थीटा एंड कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तब ये पार्ट आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ax बाई कॉस थीटा प्लस by बाई साइन थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो अभी इस पार्ट में हम लोग आते हैं, ax बाई कॉस थीटा प्लस by बाई साइन थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे देखो साइन कॉस थीटा का वैल्यू ये है, ये पुट कर दिया। देखो ax बाई कॉस थीटा का मतलब है दिस, तो इसको नीचे ले लिया एंड यहाँ पे by बाई साइन थीटा का वैल्यू बैठा दिया इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अभी ये दोनों से कॉमन पार्ट है, देखो रूट ओवर ax होल टू द पावर टू थर्ड प्लस by होल टू द पावर टू थर्ड, ये दोनों में ये कॉमन ले लिया, तो इसमें आ गया ax होल टू द पावर टू थर्ड और इसमें आ गया प्लस by होल टू द पावर टू थर्ड इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो नाउ अगर हम लोग ax होल टू द पावर टू थर्ड प्लस by होल टू द पावर टू थर्ड, ये दोनों को हम लोग k मानेंगे, लेट ax होल टू द पावर टू थर्ड प्लस by होल टू द पावर टू थर्ड इक्वल टू k। तो ये पार्ट होगा k एंड दिस पार्ट होगा रूट k ना। अगर हम लोग दिस ax होल टू द पावर टू थर्ड प्लस by होल टू द पावर टू थर्ड इसको k मानेंगे, तो ये हो जाएगा रूट k, ये होगा k इंटू रूट के, इसका मतलब k टू द पावर 2/3 ना, सॉरी 3/2 ना। ये पार्ट है k, ये पार्ट है रूट k इंटू रूट के, देन वी कैन राइट दैट k टू द पावर 3/2 लिख सकते हैं ना। यस सर। तो वही लिखा है, देखो ये है k होल टू द पावर 3/2 दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अभी हम लोग इसको फ्री करना चाहते हैं 3/2 को, तो कैसे, कौन सा पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, टू थर्ड से ना, बोथ साइड को 2/3 से सर। यस, टू थर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं 2/3। तो ये 1 हो गया, ओनली ax होल टू द पावर टू थर्ड प्लस by होल टू द पावर टू थर्ड आया एंड ये आया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल टू द पावर टू थर्ड। इट वाज वर रिक्वायर्ड प्रूफ। देखो यही प्रूफ करना था, ax होल टू द पावर टू थर्ड प्लस by होल टू द पावर टू थर्ड इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल टू द पावर टू थर्ड, ये प्रूफ करना था हम लोग को। ठीक है, यस सर। हाँ, ये तुम लोग को पढ़ा के मुझे ये समझ में आ गया, जो सिर्फ ऐसे पढ़ाने से नहीं हो पाएगा, तुम लोग को कुछ करके दिखाना है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है ना। यस सर, यस सर। ठीक है, हम कोशिश करेंगे अगला क्लास में ऐसा करने के लिए। हाँ, ओके सर। दो दिन टाइम दो, मेरे पास कोई दोनों चीज़ ही हम रख के आ गया है, अभी हम घर पे है, मेरा कॉलेज में ही वो दोनों चीज़ रह गया, इसलिए हम नहीं ले पा रहे। जनरली आई एम नॉट टेकिंग विद दिस पीपीटी, आई एम टेकिंग। और थोड़ा साउंड थोड़ा तेज रखिएगा सर, आवाज नहीं आता क्लियर। ये सर थोड़ा साउंड तो भी ठीक कीजिए, आवाज नहीं आता ठीक से उतना अच्छा से। देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए छोड़ देते हैं। हाँ, यस सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।